Good morning, students. Welcome to Study from Home, a program initiated by Kanamakhan Public School, Vrindavan. In this program, we provide you virtual classes from home. In the previous video, we were continuing our chapter Formation of Company for 11th Standard Business Studies. In this chapter, currently, we have covered up a very small part what exactly a company is that we have already stated in our previous chapter, forms of business organization. And in this chapter, the very first thing that we studied already, that was stages of formation of company. एक बार रिकॉल कर देता हूं मैं what exactly was stages of formation of company. Every company need to go through some legal obligations, some process. Those process are to be known as stages of फॉर्मेशन. उन्हीं प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन. अगर हम कंपनी के फॉर्मेशन के स्टेजेस की बात करें तो देयर आर ओवरऑल 3 स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑल दोस 3 स्टेजेस आर द वेरी फर्स्ट स्टेज इज प्रमोशन. आफ्टर दैट कम्स इनकॉर्पोरेशन, देन subscription of capital. In previous video we studied about what exactly promotion is. Promotion is the process in which a business is shaped practically from an idea to its physical shape. देखिए एक चीज क्लियर है कि बिजनेस स्टार्ट होता है एक आइडिया से, एंड आइडिया समटाइम पॉसिबल होते हैं एंड पॉसिबल नहीं भी होते. एवरी सिंगल आइडिया वी कैन नॉट कन्वर्ट इनटू बिजनेस. ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रमोशन. एंड द पर्सन हु इनिशिएट्स द आइडिया, हु हेल्प्स द बिजनेस इन shaping the idea from imagine to its physical form is known as the promoter. ठीक है, तो हमने क्या जाना? We learned about what exactly promotion is. Promotion is the process and promoter means the person who promotes the company. After that, 2 stages also we will study, but before moving to the further 2 stages, we need to understand what are the actual functions of a promoter. एक promoter के actual functions क्या होते हैं? So in today's video, our main concern would be functions of promoter. Functions of promoter. अब प्रमोटर के बारे में एक चीज क्लियर है कि प्रमोटर होता क्या है. तो वेरी फर्स्ट थिंग दैट अ प्रमोटर डज, प्रमोटर था क्या? प्रमोटर वाज द पर्सन हु आइडेंटिफाइज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड हेल्प्स अ बिजनेस टू शेप दैट आइडिया फ्रॉम इमेजिन टू इट्स फिजिकल फॉर्म. ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट फंक्शन, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रमोटर इज recognizing the business opportunities. Recognizing the business opportunities. अब what exactly is the meaning of term business opportunities? As we guys already know, currently we are in the state of emergency due to worldwide pandemic coronavirus. We already know how it originated in China and how from China it is spread throughout the world. But it can be a problem for us. But the person who understood, the person who decided to make something good out of it, they have made good out of it. Yes, the business idea, business opportunity has been greater due to this coronavirus. कितने लोग मास्क पहनते थे इस कोरोना वायरस से पहले? कितने लोग सैनिटाइजर का यूज करते थे प्रॉपर्ली? लेकिन अगर हम सैनिटाइजर एंड मास्क प्रोडक्शन की एंड उनकी सेल्स की बात करें, so due to this coronavirus, it just has been hiked up. क्यों? Because someone promoter, someone the person who just realized what exactly a business opportunity is, and they have catch this business opportunity and created this opportunity and
मेंटेन देयर बिजनेस। तो यही होता है एग्जैक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। प्रमोटर का काम क्या है? प्रमोटर का काम मार्केट में अवेलेबल हर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है। जैसे कि प्रमोटर्स ने मार्केट में कोरोना वायरस के सिम्टम्स को पहचाना, क्या रिक्वायरमेंट थी पहुंचाना, और बड़े बड़े अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स डाल दिए फॉर सैनिटाइजर्स एंड मास्क। एंड आज आप देख सकते हैं कितने बड़े लेवल पे मास्क एंड सैनिटाइजर का प्रोडक्शन हो रहा है। और सिर्फ छोटी कंपनियां नहीं, बड़े बड़े ब्रांड्स भी आपके सैनिटाइजर एंड मास्क में आ गए। डाबर का कभी सैनिटाइजर नहीं आता था, डेटॉल का आता था, डाबर ने कभी सैनिटाइजर नहीं बनाया, लेकिन आज की डेट में डाबर ने भी अपना सैनिटाइजर लॉन्च कर दिया है। ठीक है, क्यों? बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी इज द चांस टू कैश योर वे आउट ऑफ द बिजनेस। उस आइडिया को कैश करने का तरीका ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी होती है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करने का पहला काम किसका होता है? वो होता है काम प्रमोटर का। दैट इज द वेरी फर्स्ट एंड द मेजर फंक्शन ऑफ द प्रमोटर, बिकॉज विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट अ स्टार्टअप एंड ऑल। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा क्या रहा? रिकॉग्नाइजिंग द बिजनेस आइडिया। सेकेंड पॉइंट, feasibility. मीनिंग ऑफ टर्म feasibility इज अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, अब अफोर्डेबिलिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, जिन बच्चों ने एक सीरीज देखी है, उस एक सीरीज से एग्जांपल है। ठीक है, ये है मिस्टर गणेश गायटोंडे। Not go for Gaitonde, just go for Ganesh. What exactly Mr. Ganesh wants? Mr. Ganesh का एक सपना है कि वो चांद पे जाए और वहां जाके बिजनेस स्टार्ट करें। बिजनेस अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। एलॉन मस्क इसी चीज से पैसे कमा रहा है। एलॉन मस्क द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ SpaceX। आप लोगों ने नाम सुना होगा। अभी रिसेंटली एलॉन मस्क की जो कंपनी है SpaceX ड्रैगन के जो कैप्सूल है, उन्होंने अपना फर्स्ट लॉन्च किया है एंड नासा के पहले 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में पहुंचाए हैं। और SpaceX ये करने वाली दुनिया की पहली प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। जी हाँ, इससे पहले स्पेस में जो जितने भी एस्ट्रोनॉट्स गए हैं वो नासा से गए हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी से गए हैं, आई थिंक चाइना से भी गए हैं। लेकिन SpaceX इज द ओनली एजेंसी प्राइवेटली जिसने अपने कैप्सूल से भेजा है एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये एक्चुअली अपडेट था जो रिसेंटली अभी हुई है और अभी वो क्रू वापस आने वाला है। और आपने एक न्यूज़ और सुनी होगी, उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट जब बैटरी चेंज कर रहे थे, लिथियम आयन बैटरी चेंज कर रहे थे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो उनमें से एक एस्ट्रोनॉट के सूट पे लगा हुआ शीशा जो गिर गया एंड वो स्पेस में छूट गया। एंड वो दोनों एस्ट्रोनॉट वापस आने वाले हैं 1 हफ्ते के अंदर वापस अर्थ में, उसी ड्रैगन कैप्सूल की हेल्प से। तो ये थी एक बिजनेस के बारे में, किस तरह से एलॉन मस्क कहाँ से शुरू हुए, SpaceX खड़ी की एंड बिजनेस आइडिया को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। तो ऐसे ही एलॉन मस्क की तरह मिस्टर गणेश है, उनका आइडिया है चांद पे जाने का। ठीक है, तो चांद पे जाने के लिए उनको क्या क्या करना पड़ेगा, पहले मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज, जब आपके माइंड में बिजनेस आइडिया आ जाए तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू लुक फॉर वेदर दैट business idea is technically possible or not. The very first thing that you look for a business is technical feasibility, whether that business is technically feasible or not. अब technically feasible का मतलब है कि whatever the idea you guys have, whether that idea could be technically possible or not. जैसे आपके माइंड में एक आइडिया है कि आप न्यूक्लियर पावर से अपने घर को बिजली दें। ठीक है, आप अपने पूरे मोहल्ले को बिजली देना चाहते हैं, इवन पूरे इंडिया को बिजली देना चाहते हैं न्यूक्लियर पावर से। अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर पावर पॉसिबल नहीं है, लेकिन इतना टेक्निकली फीजिबल अभी तक न्यूक्लियर फ्यूल हो नहीं पाया है, बिकॉज प्राइवेटली किसी भी हैंड में न्यूक्लियर फ्यूल है नहीं। तो आपका बिजनेस आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन आप प्राइवेटली उस
आप प्राइवेटली उस फ्यूल को हैंडल नहीं कर सकते, आप हासिल नहीं कर सकते, वो केवल गवर्नमेंट की डीलिंग से ही हासिल होता है। तो आपका आइडिया बहुत अच्छा था लेकिन टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। मिस्टर गणेश को चांद पे जाना था, लेकिन चांद पे जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट थी उनके पास थी नहीं, तो टेक्निकली वो भी पॉसिबल नहीं था। द वेरी फर्स्ट थिंग आफ्टर हैविंग द आइडिया दैट वी गो फॉर इज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दैट आइडिया इज टेक्निकली feasible or not, and if that idea is not technically feasible, then I don't think so there is any use to that idea. So very first is technical study of that particular idea, whether that idea is going to be good for us in technical terms or not. The second thing that we look for after just getting to know whether the technical feasibility is possible or not, suppose कि the technical feasibility possible हो भी गई, इस वाले कॉलम में हमारा यस हो गया, ठीक है, चलो टेक्निकल रॉकेट, गायतोंडे जी का ड्रीम था चांद पे जाने का है, लोगों को चांद पे पहुंचाने का, तो टेक्निकली चलो पॉसिबल है, रॉकेट वगैरह अवेलेबल है, ठीक है। सेकंड जो था फाइनेंशियल फीजिबिलिटी। अब फाइनेंशियल फीजिबिलिटी का क्या मतलब है? We guys already know as being the student of business studies that a business doesn't start without the investment. You need to invest something, you need to plant some money, and after that you grow a tree out of it. So अगर आपके बिजनेस आइडिया में इन्वेस्टमेंट आपकी लिमिट से ज़्यादा होगा, या आप अपने बिजनेस आइडिया के लिए इन्वेस्टमेंट ही अरेंज नहीं कर पाए, so what use could be of that idea? So after getting to know about technical feasibility, we check the financial feasibility, whether we'd be able to arrange the funds for that idea or not, and if it is yes, ठीक है, हाँ, वो आप फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी चेक करने को तैयार है, ठीक है, आपके बिजनेस को यानी गणेश के बिजनेस को फाइनेंशियल फिजिबिलिटी भी मिल रही है। जो लास्ट वाला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक business is of no use if if it is not giving good returns. ऐसा बिजनेस का कोई यूज नहीं है अगर ये बिजनेस आपको गुड रिटर्न ना दे, ठीक है। एक्चुअली बिजनेस करने का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या होता है? वी वांट समथिंग इन रिटर्न एंड दैट रिटर्न मस्ट बी कम मोर देन वॉट एवर वी हैव इन्वेस्टेड। तो हम केवल और केवल उन्हीं आइडियाज का प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करते हैं, यानी कि प्रमोटर will only practically execute those ideas which would be economical feasible, यानी कि ideas those would be profitable। यानी कि अगर आपका आइडिया प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस आइडिया का कोई यूज नहीं है बिजनेस के लिए। क्यों? गणेश ने चांद पे जाने के बारे में सोचा, रॉकेट अवेलेबल था, फंड का अरेंजमेंट हो गया, लेकिन कितने लोग चांद पे जाना चाहते हैं? कितने लोग चांद पे जाना अफोर्ड कर सकते हैं? तो ऐसा बिजनेस खोलते हैं तो दैट इज नॉट प्रॉफिटेबल, एंड कोई गारंटी भी नहीं है कि वापस लौट के आए रॉकेट फटेगा नहीं रास्ते में। ये केवल और केवल एक एग्जाम्पल है जो मिस्टर गणेश का है, लेकिन जो प्रमोटर का जो मेन फंक्शन है, आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज दे स्टडी द अफोर्डेबिलिटी ऑफ देयर आइडिया, एंड इन terms meaning of affordability is first they study about whether their idea is technically possible or not, means technology is available for those idea or not. Second, financial feasibility or not, whether they can arrange funds for that idea or not. After that, economical feasibility means those idea would be profitable or not. तो ये तीन चीज़ें हमको बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं, और अगर हम इन फिजिबिलिटी स्टडी में हमारा क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है देन डेफिनेटली प्रमोटर उस आइडिया को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। तो ये थे हमारे फर्स्ट 2 पॉइंट्स ऑफ फंक्शन ऑफ प्रमोटर। लेट्स गो टू द थर्ड वन। The third one is name approval.
it is a duty of promoter that after having the business idea and the evaluation of that idea in terms of technically, economically and financially, that business has the name of that business, the name of that firm must have to be registered. अब उसकी ड्यूटी है उसके नेम को रजिस्टर कराने की, लेकिन क्वेश्चन है कहाँ? क्वेश्चन तो यही है, कहाँ रजिस्टर कराएगा वो नाम? वो रजिस्टर कराएगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। यानी जिस स्टेट में वो अपना ऑफिस खोलना चाहते हैं, जिस स्टेट में फर्म का हेडक्वार्टर होगा, उस स्टेट के रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी में उस फर्म का रजिस्ट्रेशन होगा। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आ सकता है, सर अगर हम अपनी एक कंपनी का नाम लेके गए, सपोज करो मेरा नाम क्या है, चलो मेरा नाम तो छोड़ते हैं, मथुरा में एक बहुत बड़ा नाम है, आप मथुरा में रहते हैं, आपने अपनी फर्म के लिए आप फूड आइटम खोलना चाहते हैं, आपने अपनी फर्म के लिए नाम लिया ब्रजवासी, ठीक है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, हल्दीराम, आपका भी टाइटल हल्दीराम है, ठीक है, तो आपने क्या नाम ले लिया अपनी फर्म के लिए, हल्दीराम या ब्रजवासी। आप इन नामों के साथ गए रजिस्ट्रार के पास कि सर ये एप्लीकेशन है एंड हमें अपनी फर्म का नाम ये रखना है, तो लेकिन हल्दीराम के नाम से भी ऑलरेडी एक फर्म रजिस्टर्ड है और ब्रजवासी के नाम से भी एक फर्म रजिस्टर्ड है, तो वहाँ पे आपका जो नेम एप्लीकेशन है वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑलरेडी जब कोई नाम रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, तो उस नाम पे दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं होता फॉर द फर्म्स, आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपको चेंजेस का एग्जांपल दूं मैं, एक आता है हल्दीराम, ठीक है, जरा कभी ध्यान दीजिएगा, और एक आता है हल्दीराम्स, आता है ना, जरा याद कीजिए, हल्दीराम एक आएगा हल्दीराम, ठीक है, और एक आएगा हल्दीराम्स। हल्दीराम आई थिंक हल्दीराम के रेस्टोरेंट होते हैं और हल्दीराम्स की नमकीन आती है। ये चेंज क्यों किया गया? बिकॉज रजिस्ट्रार ने क्या किया होगा, जब रजिस्ट्रेशन कराने एक ही फैमिली होगी, ठीक है, और रजिस्ट्रार ने जब इनका रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया, बिकॉज इसका कॉपीराइट इनके पास है, तो इन्होंने क्या किया, अपने नाम के पीछे एस लगा के एक नया नाम बना दिया। तो अल्टीमेटली नेम अप्रूवल के लिए प्रमोटर करता क्या है? नेम अप्रूवल के लिए प्रमोटर क्या करता है? प्रमोटर सजेस्ट 3 नेम्स। प्रमोटर जो रजिस्ट्रार के पास लेके जाता है वो कितने नाम लेके जाता है? 3 नाम लेके जाता है, ठीक है, एज पर रिक्वायरमेंट, अफोर्डेबिलिटी के बेसिस पर 3 नाम लेके जाता है, और उन 3 नामों में से, ठीक है, इन 3 नामों में से कोई भी एक नाम जो है सॉरी, वो क्या कर दिया जाता है? वो अप्रूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोसेस ऑफ नेम अप्रूवल, ठीक है। इसे डिफाइन कैसे करेंगे? Name approval is the process that is one of the main function of the functions of promoter. Promoter registers the name of the firm in the registrar of company of that particular state where the headquarters of that firm would be. If the name is already taken by any other firm, in that case promoter suggests the 3 name as per the affordability and priority, and any one of the name is given to that particular firm, ठीक है। ये था आपका नेम अप्रूवल। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज फॉर MOA। अब क्वेश्चन इज, पहले तो बाद में जाते हैं कि MOA क्या है। व्हाट इज MOA? MOA हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। MOA स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। अभी के लिए हम क्या लिख रहे हैं? फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज द वेरी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। कोई कंपनी बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, अगर एक लीगल कंपनी है तो। और ये प्रमोटर का काम है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे उस कंपनी के डायरेक्टर्स के साइन होते हैं एंड उन
डायरेक्टर्स को या फिर उन सिग्नेटरी अथॉरिटीज को सेटअप करना भी ये प्रमोटर का फंक्शन है, ठीक है। और साइन करने वाले कौन होते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर जो लोग साइन करते हैं वो लोग होते हैं, जो सिग्नेटरी अथॉरिटी होती है वो कौन होती है? दे आर मोस्टली डायरेक्टर्स, जिनको आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से भी जानते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें आते हैं, ठीक है। जो वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं सिग्नेटरी बॉडी। अब प्रमोटर डायरेक्टर्स को कैसे सेटअप करेगा? अब प्रमोटर किस तरह से डायरेक्टर्स को तैयार करेगा कि भैया मेरी फर्म के डायरेक्टर बनो, या क्या क्राइटेरिया है किसी फर्म का डायरेक्टर बनने का? द वेरी फर्स्ट क्राइटेरिया दैट इज नीडेड टू बी द सिग्नेटरी अथॉरिटी फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट इज क्वालिफिकेशन शेयर। यानी ये डायरेक्टर कैसे बना, यानी सिग्नेटरी अथॉरिटी कैसे बना? क्यों? क्योंकि प्रमोटर ने इसको क्या बेचा? ये प्रमोटर है, प्रमोटर ने कुछ बेचा डायरेक्टर्स को, एंड प्रमोटर ने डायरेक्टर्स को क्या बेचा? प्रमोटर्स ने डायरेक्टर को बेचा क्वालिफिकेशन शेयर्स। क्वालिफिकेशन शेयर्स। आप जितने भी सीईओ देखते हैं, आप जितने भी एमडीज देखते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स देखते हैं फर्म्स के, वो ऐसे ही नहीं बनते। एक सीईओ को सीईओ बनने के लिए, एमडी बनने के लिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाने के लिए उनको क्वालिफिकेशन शेयर परचेज करना पड़ता है। तो ऐसे ही एक नई फर्म की सिग्नेटरी को अरेंज करने के लिए प्रमोटर विल हैव टू सेल आउट द क्वालिफिकेशन शेयर टू दिस डायरेक्टर, एंड इस क्वालिफिकेशन शेयर्स के मिलने के बाद ही ये एज अ सिग्नेटरी ऑथोराइज होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे साइन करने के लिए, ठीक है। तो ये था क्वालिफिकेशन शेयर। अब एग्जैक्टली हाउ टू डिफाइन क्वालिफिकेशन शेयर्स? अभी क्वेश्चन तो ये भी है ना कि हमने इससे बता तो दिया कि सर क्वालिफिकेशन शेयर्स को परचेज करेगा तो वो डायरेक्टर बन जाएगा, एंड उसके बाद वो एमओए पे साइन कर देगा। लेकिन डिफाइन क्या है? अगर मैं एक नंबर में आपसे वाइवा में पूछ लूँ डिफाइन क्वालिफिकेशन शेयर्स, देन हाउ यू गोइंग टू डिफाइन व्हाट एग्जैक्टली क्वालिफिकेशन शेयर इज? Qualification shares are those shares which which will have to be sold on what term I should use? On required basis, on mandatory basis. Qualification shares are those shares which have to be sold on mandatory basis to the directors by the promoter to set up them as a signatory to sign memorandum of association। यानी कि क्वालिफिकेशन शेयर वो शेयर्स होते हैं जिनको बेचना कंपलसरी होता है प्रमोटर के लिए डायरेक्टर्स को, जिससे कि उन्हें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लिए एज अ सिग्नेटरी ऑथोराइज किया जा सके, ठीक है। तो ये था मतलब आपका फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसके बाद दो फंक्शन और रह गए। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू फिनिश अप आवर वीडियो। इसके बाद हमने देख लिया फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज फॉर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आफ्टर दैट द फंक्शन ऑफ प्रमोटर स्टेट्स अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब सिग्नेटरीज को यानी डायरेक्टर्स के ऑथराइजेशन के बाद जो फंक्शन है प्रमोटर का वो ये है, ही अपॉइंट्स द प्रोफेशनल्स। प्रोफेशनल्स क्या होते हैं? थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, जब हमने फर्स्ट चैप्टर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिफरेंशिएट किया था, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशन क्या था? प्रोफेशन इज द टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स सम पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉलेज विद प्रैक्टिस ऑफ विद सर्टिफिकेशन ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। अब एक बिजनेस के लिए कौन कौन से प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट होती है? लॉयर सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है लॉयर की, बिकॉज आपका जितना भी लीगल वर्क है वो कौन करेगा? लॉयर। लॉयर के बाद चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिट के लिए। इसके बाद बैंकर्स। बैंकर्स का काम क्या है? देखो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो जितना भी आपका शेयर होल्डिंग का काम है, सेबी अप्रूवल एंड ऑल, ये सारे के सारे काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के होते हैं। आपके शेयर मार्केट, आपकी कंपनी के शेयर्स को मार्केट प्रोवाइड करने का काम कौन करेंगे? बैंकर्स करेंगे।
ठीक है, तो ये क्या होते हैं, these are some example of professionals, and it is the duty of promoter to appoint those professionals for the smooth conduction of business. ठीक है, इसके बाद लास्ट जो पॉइंट है इसमें वो है प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। इतना कुछ होने के बाद विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स एंड सिग्नेटरी अथॉरिटीज द प्रमोटर प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट्स नीडेड टू फॉर्म अ कंपनी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं? देयर आर टू mandatory document for the existence of any joint stock company, and those two documents are MOA, Memorandum of Association, and second one is AOA, Article of Association। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज द लास्ट फंक्शन ऑफ प्रमोटर। ठीक है, और जो आपका प्रमोटर होता है, प्रमोटर इन सारे डॉक्यूमेंट्स को और एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है जिस डॉक्यूमेंट्स में सारे के सारे शेयर होल्डर्स के नाम होते हैं, उनका एड्रेस होता है। ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्या? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एक बार समझा देता हूँ क्या होता है कि देखिए, प्रमोटर का फंक्शन है क्या? इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना। ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट कहाँ सबमिट होते हैं? ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं आपके सेम रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी के पास। और इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के अलावा प्रमोटर जो क्या है, प्रमोटर रजिस्ट्रार को एक डॉक्यूमेंट सबमिट करता है। ठीक है, और ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें क्या होते हैं? सारे के सारे शेयर होल्डर्स के नाम एंड शेयर होल्डर्स नेम एंड एड्रेस, और document that holds the name of shareholders name and address that is submitted by promoter to registrar of the companies is called return of allotment। is called return of allotment। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद सीधा सीधा जो काम होगा वो बस यही होगा कि सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, हमने क्या बोला फंक्शनल प्रमोटर में? द वेरी फर्स्ट थिंग दैट प्रमोटर वाज डूइंग, ही वाज रिकॉग्नाइजिंग द बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आफ्टर दैट ही वाज चेकिंग द अफोर्डेबिलिटी ऑफ दैट बिजनेस आइडिया। देन ही got name approved for the firm, and after that he fixed the signatories authorities for the memorandum of association, and after that appointment of professionals and preparation of required documents। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? required documents for the formation of company। इसमें से किसी की क्वेरी हो, then put your query on the Google Classroom, YouTube comments, and you can send your queries directly to me on WhatsApp। Thank you students, तब तक के लिए